Students, good morning and Jai Hind. Today we shall start third chapter in fact, that is plant kingdom. Students, in the previous two chapters we have discussed about the biological classification, the living world, and five kingdom classification till kingdom fungi. Okay, it's Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच बिटेकर का हम लोग इस समय फॉलो कर रहे हैं और मोनेरा प्रोटिस्टा फिनिश कर लेने के बाद, फंजाई फिनिश कर लेने के बाद अब हम लोग फोर्थ नंबर पे आ गए हैं किंगडम प्लांटी और चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल जस्ट ऑब्जर्व रे डायग्राम ऑफ किंगडम प्लांटी। सी हियर, किंगडम प्लांटी students, plants are bifurcated into cryptogames and phanerogames on the basis of flowering. If flowers absent, then the plants are said to be as cryptogames, and when flowers are present, then the plants are said to be as phanerogames. So kingdom plantae is bifurcated into two divisions on the basis of flowering students. If flowering takes place, then the plants are said to be as crypto. This particular division is said to be as cryptogames, and if flowering occur, then it is said to be as phanerogames. यहाँ पे flowering होता है phanerogames में और cryptogames में flowering does not take place. Okay. Now cryptogames are further divided into two groups, which are Thallophyta and Embryophyta. Thallophyta and Embryophyta. यहाँ पर क्रिप्टोगेम्स जिनमें कि फूल नहीं खिलते हैं, फ्लावरिंग नहीं होता है, इनको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया बच्चों। वन इज थैलोफाइटा and another is embryophyta. Thallophytes means plant body cannot be differentiated into root, stem and leaves. जब प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड न किया जा सके तब उन्हें बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी थैलस जैसा प्लांट, प्लांट थैलस लाइक यानी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, और वहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। और जबकि यहाँ देख रहे हैं आप दूसरे नंबर पर एम्ब्रियोफाइटा, तभी क्रिप्टोगेम्स हैं, यानी फ्लावरिंग यहाँ पर भी नहीं होगी, लेकिन एम्ब्रियोफाइटा यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा या एम्ब्रियो के फॉर्मेशन, एम्ब्रियो जैसा एक स्टेशनरी स्टेज आएगा और दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ और रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक पार्ट ऑफ द प्लांट. So here you are seeing that cryptogames are divided into two groups, Thallophyta and Embryophyta. Thallophyta are the thalloid plants which cannot be differentiated into root, stem and leaves, and Embryophyta are the plants which can be differentiated into root, stem, leaf or root like, stem like, leaf like structure, and embryo formation takes place. Students, thallophytes are fungi and algae. ध्यान दीजिएगा, fungi and algae. Fungi which we have already discussed. हम लोग fungi को पहले ही पढ़ चुके हैं। क्यों? Because we are following the classification proposed by R.H. Whittaker. That is 5 kingdom classification based on cell type, cell wall, mode of nutrition and body organization and nuclear membrane. That is Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. तो हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ लिए हैं, फिर भी मैंने फंजाई को यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंजाई, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। और फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं एल्गी, एल्गी आर क्लोरोफिलस थैलोफाइटा। फंजाई और एल्गी दोनों ही थैलोफाइट्स है बच्चों। न तो आप फफूंदी में, जो फफूंदी है फंजाई है, फंजाई में भी आप रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और सिमिलरली जो एल्गी है, तालाब या पोखरे के ऊपर जो काई लग जाती है उसमें भी आप रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो बोथ आर थैलोफाइट्स बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज फंजाई आर ए क्लोरोफिलस थैलोफाइट।
In the last class we have discussed that fungi are achlorophyllous thallophytes, क्लोरोफिल्स नहीं पाया जाता है, और जबकि एल्गी आर क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। Now come to the embryophyta, the second group of cryptogame division, जिसमें कि फूल नहीं खिलता है। इन्हीं का अगला ग्रुप दैट इज एम्ब्रियोफाइटा, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होता है और रूट स्टेम लीफ या रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एम्ब्रियोफाइटा को बच्चों दो भागों में बांटा जाता है। वन इज ब्रायोफाइटा and another is pteridophyta. Bryophyta and pteridophyta. Here you are seeing two groups in fact of plants in embryophyta, which are bryophytes and pteridophytes. Students, bryophyta in bryophytes commonly known as mosses and pteridophyta commonly known as ferns. तो bryophyta में आप देखेंगे रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जबकि टेरिडोफाइट्स में देखेंगे ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये एम्ब्रियोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत आ रहे हैं, इसीलिए ब्रायोफाइट्स में आप देखेंगे कि जाइगोट स्टेज बनेगा, उसके बाद प्रोटोनीमा बन जाएगा, लेकिन जाइगोट स्टेज बन के फिर प्रोटोनीमा स्टेज में जाएगा, और जबकि टेरिडोफाइटा में पहली बार प्रोथैलस बनेगा, एक रेस्टिंग स्टेज दिखाई देगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन वहां पर नजर आ रहा होगा। तो इन दोनों केसेस को एम्ब्रियोफाइट्स में रखा गया, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को। जबकि ब्रायोफाइट्स के जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह गैमेटोफिटिक होती है, दैट इज हैप्लॉइड, और जबकि टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होगी दैट इज स्पोरोफिटिक होगी, डिप्लॉइड। यह गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड और यह स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट, जाइलम और फ्लोएम अभी भी नहीं पाए जाते हैं, और जबकि टेरिडोफाइट्स में पहली बार जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है बच्चों, इसीलिए टेरिडोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज प्राइमरी वेस्कुलर प्लांट्स, इसीलिए टेरिडोफाइटा को प्राइमरी वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। ओके, ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज मॉसेस एंड टेरिडोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज फर्न्स। नाउ कम टू द फेनरोगेम्स, जिसमें कि फूल खिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को भी दो ग्रुप में बांटा गया बच्चों, which you know very well, that is gymnosperm and angiosperms. Gymnosperms, gymno means naked and sperm means seed, and angiosperms, angio means covered and sperm means seeds. नाम से ही आपको पता चल रहा है बच्चों कि जिम्नोस्पर्म यानी जहां पर नेकेड सीड होता है, नेकेड सीड यानी सीड कोट नहीं पाया जाता है, और जबकि एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड, जहां पर कवर्ड सीड यानी सीड कोट पाया जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को भी सीड कोट्स के आधार पर, सीड कोट्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म सीड कोट एब्सेंट नेकेड सीड, और एंजियोस्पर्म मीन सीड कोट कवर्ड। और सीड कोट्स के नंबरिंग के आधार पर भी एंजियोस्पर्म को फिर से दो भागों में बांट दिया गया, व्हिच आर डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। अगर यहाँ पर दो कोटिलेडोन्स हैं तब बोलेंगे बच्चों डाइकॉट्स, और अगर सिंगल कोटिलेडोन है तब बोलेंगे मोनोकॉट। ये बच्चों पूरा रे डायग्राम बना हुआ है किंगडम प्लांटी का। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट किंगडम ऑन द होल, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम नजर आपको आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं किंगडम प्लांटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग दो भागों में बांटा गया। अगर फ्लावर एब्सेंट है क्रिप्टोगेम्स, फ्लावर प्रेजेंट है फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को भी दो ग्रुप में, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। If the plant body cannot be differentiated into root, stem, leaf, then they are said to be as thallophytes. And if plant body is differentiated into root, stem, leaf, embryo is formed, then they are said to be as embryophyta. Thallophytes are bifurcated into fungi and algae, whereas embryophytes are bifurcated into bryophyta and pteridophyta. Fungi जहाँ पे एक क्लोरोफिलस थैलोफाइटा था, एल्गी क्लोरोफिलस थैलोफाइटा, इन दोनों में ही एम्ब्रियो नहीं बनता है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक नॉन वेस्कुलर प्लांट, और ब्रायोफाइटा जो है यहाँ पे प्लांट बॉडी रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करती है। जबकि टेरिडोफाइटा में जब जाएंगे बच्चों आप, तो टेरिडोफाइटा में देखेंगे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ आएगा, और पहली बार
स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आएगी, 2n डिप्लॉयड 2n प्लांट बॉडी आएगी, एंड दे आर प्राइमरी वैस्कुलर प्लांट्स। टेरिडोफाइट्स आर प्राइमरी वैस्कुलर प्लांट्स बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू फर्स्टली अपीयर्ड इन pteridophytes, or you can say ferns. Here in phanerogames, the flowering plants are bifurcated into gymnosperms and angiosperms. Gymno means naked, sperm means seed. Means seed are naked in gymnosperms, means seed coats are absent. And in angiosperms we are seeing here, angio means covered and sperm means seed. So it means they have covered seed, it means seed coats are present. And students, further you are seeing that on the basis of cartilagon or seed coat, angiosperms are further divided into dicots and monocots. तो बच्चों डाइकॉट और मोनोकॉट का अंतर जानना बहुत ही जरूरी होता है। आगे तक हर क्लास में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो अभी आप समझ लें कि डाइकॉट्स आर एक्स एल्बुमिनस। डाइकॉट्स एक्स एल्बुमिनस होते हैं, यानी नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, एंडोस्पर्म या रिजर्व फूड मटेरियल नहीं पाया जाता है। डाइकॉट्स के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर एंडोस्पर्म यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल नहीं पाया जाता है, बल्कि रिजर्व फूड मटेरियल, द रिजर्व फूड इज बेसिकली स्टोर्ड बाय सीड कोट्स। इसीलिए डाइकॉट प्लांट में बच्चों आप देखते हैं सीड कोट थिक और कलरफुल होते हैं। थिक माने मोटा, मोटे और कलरफुल होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स आर एल्बुमिनस, दैट इज एंडोस्पर्मस। इसीलिए मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे कि नारियल पानी बेस्ट एग्जांपल है। नारियल का पानी दैट इज एंडोस्पर्म, द रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज हाईली न्यूट्रिटिव इन फैक्ट। तो दैट इज एंडोस्पर्म, इसीलिए उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मस या एल्बुमिनस। और इसीलिए मोनोकॉट्स के जो सीड कोट होते हैं वो थिन और ट्रांसपेरेंट होते हैं, पतले और पारदर्शी। जैसा कि मेज में आप देखते हैं, मेज का सीड कोट आप देखेंगे थिन एंड ट्रांसपेरेंट रहेगा, जबकि ग्राम चने का जो सीड कोट है वह थिक और कलरफुल होता है। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। इसके अलावा बच्चों अभी आगे आप मॉर्फोलॉजी, आप फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, तब आप देखेंगे मोनोकॉट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं या फाइब्रस रूट पाए जाते हैं, और जबकि लीव्स के वेन्स में पैरेलल वेनेशन होता है, और जबकि डाइकॉट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स के अंदर, और जबकि डाइकॉट्स में टैप रूट पाया जाता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट्स and dicots. So from this chart it is clear that now we are going to start algae, क्योंकि फंजाई हम लोग पढ़ चुके हैं। We are following the chart classification chart proposed by R.H. Whittaker, that is 5 kingdom classification: Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia, and we have finished already Monera, Protista, fungi. So in Plantae we have to start number 1 division, that is algae. बच्चों हम लोग एल्गी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। एल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फैक्ट। एल्गी चिल्ड्रन, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about algae is known as फाइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जो हमें एल्गी के बारे में बताती है उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, Phycology. The branch of science which deals about algae is well known as phycology. Algae are chlorophyllous thallophytes. The first thing, algae are chlorophyllous thallophytes. Two words written over here. क्लोरोफिलस मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट। पहली चीज तो ये हो गई कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एंड सेकेंड वन इज थैलोफाइट्स मीन्स प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो क्लोरोफिलस थैलोफाइट, ध्यान दीजिएगा,
क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जबकि फंजाई में हम लोगों ने क्या देखा, फंजाई आर एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स, फंजाई एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स थे, क्लोरोफिल एब्सेंट था, दैट्स व्हाई दे आर हेक्टोट्रॉफ्स, they are maybe parasitic in nature or saprophytic in nature or symbiont in nature, which we have seen in lichens, but here algae are chlorophyllous thallophyte. It means they produce their own reserve food material by the process of photosynthesis and they reserve their food material. Okay, so algae are chlorophyllous thallophytes and algae are mostly just found in the moist places, damp soil and moist places, tree logs, tree stumps, sometimes moist staircases also, and moist soil also. So algae are just present on moist surfaces and moist soil. Algae also form the symbiotic association with fungi in the form of lichens, which we have discussed earlier. In lichens, algal portion is phycobiont, which prepare the food material, and the fungal portion is mycobiont, which absorb the water and minerals from the surfaces like soil, rock, or tree barks. Okay, children. So, first of all, we have to discuss about the economic importance of algae. Economic importance. Students, economic importance of algae is very important for your exam because economically algae has lot of values, lot of virtues, in fact, beneficial values, lot of beneficial values, and sometimes algae cause some harm also in the form of eutrophication, algal bloom. We shall discuss in detail the harmful aspects also, but first of all we have to discuss about the beneficial aspects related to algae. So make the heading here, beneficial aspects. Beneficial aspects. Okay students, number one is chlorella. ध्यान दीजिएगा, क्लोरेला, क्लोरेला इज द ग्रीन एल्गी, क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है बच्चों, जाहिर सी बात है, क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो क्लोरेला नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी, कॉमनली नोन एज स्पेस एल्गा। ध्यान दीजिएगा, कॉमनली इसको क्लोरेला को स्पेस एल्गा कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि स्पेस एल्गा, विच एल्गी इज कॉमनली नोन एज स्पेस एल्गा, अंतरिक्ष शैवाल। तो क्लोरेला को स्पेस एल्गा कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्लोरेला का पेस्ट बनाकर ले जाते हैं एज अ फूड मटेरियल। डू यू नो, क्लोरेला का पेस्ट बनाकर जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो फूड मटेरियल के रूप में ले जाते हैं, क्योंकि क्लोरेला प्रोवाइड्स 35% प्रोटीन एज वेल एज ऑक्सीजन टू आवर इंटरनल बॉडी टिश्यू। हमारे इंटरनल बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज क्लोरेला प्रोवाइड्स 35% प्रोटीन आल्सो ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो अपने ड्राई वेट का ये 35% चूंकि प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्लोरेला, आपने डाबर कंपनी का नाम भी सुना हुआ है, तो डाबर कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड, डाबर कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड अ टैबलेट क्लोरेलिन, a tablet chlorelin from chlorella, and chlorelin tablet is usually used for asthma patients। जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, दमा की जो बीमारी होती है, अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं, उनके इंटरनल बॉडी टिश्यू की ऑक्सीजन नीड को रिप्लेनिश करने के लिए डाबर कंपनी ने ये टैबलेट तैयार किया क्लोरेलिन, जो कि क्लोरेला एल्गी से बना हुआ है, क्लोरेला विच इज ग्रीन एल्गा। Second one is spirulina. Spirulina students. Spirulina is also a green algae which provides 65% protein. 65% protein of its dry weight. Spirulina अपने ड्राई वेट का
यह 65% केवल प्रोटीन होता है बच्चों, इसीलिए इसको रिच प्रोटीन पाउडर में यूज किया जाता है। जो रिच प्रोटीन पाउडर्स होते हैं जिम वगैरह में बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं, या प्रोटीन एक्स या अन्य भी जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वहां पे स्पाइरुलिना के पाउडर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि इट प्रोवाइड 65% प्रोटीन ऑफ इट्स ड्राई वेट। अनदर एग्जांपल ऑफ एल्गी दैट इज अल्वा, ग्रीन एल्गी अल्वा। अल्वा इज कॉमनली नोन एज सी लेट्यूस, इसको समुद्री सलाद कहा जाता है, सी लेट्यूस। अल्वा इज यूज्ड टू प्रिपेयर रिच सैलेड। इन फैक्ट रिच सैलेड कॉन्टिनेंटल होटल्स में या रिच फूड आइटम्स की जब बात करते हैं तो रिच सैलेड के रूप में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और फायदेमंद जो है सलाद तैयार किया जाता है अल्वा से, दैट इज रिच सैलेड। इसीलिए अल्वा को कहा जाता है सी लेट्यूस, इन फैक्ट सी लेट्यूस। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस अनदर एल्गीज। Number 4 student, number 4 is Laminaria and Sargassum। ध्यान दीजिएगा, Laminaria and Sargassum, Laminaria and Sargassum, these are examples of brown algae। फियोफाइसी के मेंबर हैं बच्चों। ये एल्गी के 3 क्लास होते हैं बच्चों, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। 3 एल्गी के क्लास, तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी 3 क्लास एल्गी के बच्चों। तो ये क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। 3 क्लास एल्गी के। तो यहाँ पे अब एग्जांपल्स 3 अभी एग्जांपल्स मैंने दिया आपको, क्लोरेला का, स्पाइरुलिना का और अल्वा का। वो तीनों बिलोंग करते थे क्लोरोफाइसी से, ग्रीन एल्गी से। और अब एक एग्जांपल आप देख रहे हैं लेमिनेरिया एंड सरगासम, बोथ आर बिलोंगिंग टू फियोफाइसी व्हिच इज ब्राउन एल्गी इन फैक्ट, एंड लेमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज रिच वेजिटेबल इन कॉन्टिनेंटल फूड्स एंड लेमिनेरिया एंड सरगासम प्रोवाइडिंग आयोडीन। आयोडीन की सप्लाई करते हैं हमारे फूड आइटम्स में, आयोडीन के रिच सोर्स होते हैं ये लेमिनेरिया और सरगासम। लेमिनेरिया और सरगासम कई देशों में इसको यूज किया जाता है रिच वेजिटेबल के रूप में बच्चों। कॉन्टिनेंटल फूड्स में लेमिनेरिया और सरगासम को यूज किया जाता है बिलोंगिंग टू ब्राउन एल्गी। कम टू द नेक्स्ट बेनिफिशियल एल्गी व्हिच इज रेड एल्गी इन फैक्ट, पोरफायरा। ध्यान दीजिएगा, रेड एल्गी पोरफायरा। पोरफायरा एक ग्रीन एल्गी है, इसको जापान में और अन्य भी देशों में, अन्य एशियन कंट्रीज में पोरफायरा से जो है एक सब्जी, एक वेजिटेबल तैयार किया जाता है, रिच वेजिटेबल, इसको कहा जाता है नोरी फूड। ध्यान दीजिएगा, टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट, मेडिकल के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नोरी फूड, NORI, वेरी इंपॉर्टेंट फूड इन फैक्ट। नोरी फूड दैट इज फॉर्म्ड बाय व्हिच एल्गी? आंसर इज Porphyra. Porphyra is red algae in fact, red algae porphyra, which is used to prepare nori food, the special kind of vegetable used in the countries of Asia and other continent. And basically we shall discuss in detail about the reserve food material. Then we shall see that the reserve food material of Porphyra is equivalent to glycogen. Okay, equivalent to glycogen, which is our reserve food material, glycogen. So that's why we can easily digest the items prepared by the use of Porphyra. Okay, come to the next benefit of algae. Next number is algae provide oxygen. Algae provide oxygen by photosynthesis. You know very well that oxygen is the byproduct of photosynthesis. क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, तो एल्गी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है जिससे कि ऑक्सीजन को लगातार इवॉल्व कर रहा है एटमॉस्फेयर में। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एल्गी प्रोवाइड अबाउट 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ऑफ द
total oxygen of earth atmosphere, अर्थ एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर का जो टोटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं 21% के नियरली ऑक्सीजन पाया जाता है, और उस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका 20% जो इवाल्व होता है वह केवल एल्गी की वजह से मिलता है। That's why you can understood that algae are the most important plants in the lower botany. लोअर बॉटनी में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें एल्गी का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि एल्गी फ्यूचर फूड के रूप में भी हमारे सामने नजर आ रहा है, और साथ ही साथ एल्गी प्रोवाइड्स 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ऑफ दिस यूनिवर्स, और यू कैन से अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, so these are the benefits of algae. Now we shall discuss some harmful aspects related to algae, students. Make another heading, harmful aspects. अभी तक हम लोगों ने बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स की बातें किया। Now we shall discuss about the harmful aspects of algae. Harmful aspects. Algae do not harm very much. Algae से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एल्गी अपना खाना अपने से बनाता है, अब फोटोसिंथेसिस करके सेल्फ डिपेंडेंट है, इसीलिए उससे हमें बहुत ज्यादा हार्म नहीं होता है। लेकिन एल्गी से दो हार्म भी है, ध्यान देंगे। नंबर 1 इज यूट्रॉफिकेशन। टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूट्रॉफिकेशन। दिस हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम, so many times. Eutrophication, it is belonging to 3 marks questions. Eutrophication, एल्गी से हमें एक नुकसान होता है, यूट्रॉफिकेशन बड़ा नुकसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूट्रॉफिकेशन। ध्यान से देखेंगे बच्चों आप इसको। यू मीन्स डेवलप्ड, यू मीन्स डेवलप्ड एंड क्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, यूट्रॉफिकेशन, यू मीन्स डेवलप्ड या ट्रू, जैसे आप बोलते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक को बोलते हैं डेवलप्ड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस, तो उसी तरीके से यहाँ पर यूट्रॉफिकेशन यानी डेवलप्ड या ट्रू और ड्रॉप्स में न्यूट्रिशन, तो डेवलप्ड न्यूट्रिशन हमारे आपके लिए नहीं बल्कि एल्गी के लिए। दैट्स व्हाई दिस फिनोमेना इज सेड टू बी एज यूट्रॉफिकेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वी यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन अवर डोमेस्टिक एक्टिविटी। ओके, हम लोग अपने डोमेस्टिक पर्पसेज में सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं, और सोप और डिटर्जेंट्स ऐड करते हैं नाइट्रेट और फास्फेट को हमारे घर के आसपास के वाटर बॉडीज में, थ्रू सीवेज सिस्टम, थ्रू ड्रेनेज सिस्टम या किसी अन्य तरीके से भी, या सोप और डिटर्जेंट से निकले हुए नाइट्रेट और फास्फेट हमारे वाटर बॉडीज तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे वाटर बॉडीज तक जो कि स्टैग्नेंट वाटर वाले हैं, जहां पे पानी रुका हुआ है, स्थिर है। ध्यान से समझिएगा, वी यूज सोप एंड डिटर्जेंट, we use soap and detergent children in our domestic purposes, washing, bathing and so many other purposes. We use the soap and detergents which adds nitrate and phosphate, which add nitrate and phosphate in water upon. I am just trying to show you the eutrophication in pond ecosystem. This one is the pond. बेसिकली वाटर बॉडीज ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, ये स्टैग्नेंट वाटर है बच्चों, रुका हुआ जल, रुका हुआ पानी है, एंड वी यूज द सोप एंड डिटर्जेंट इन आवर डोमेस्टिक पर्पसेज व्हिच ऐड नाइट्रेट एंड फास्फेट टू दिस ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम से यहाँ पर नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा हमारे वाटर बॉडीज में बढ़ती चली जा रही है। देख रहे हैं आप, नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा, ये अमाउंट ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट इज बीइंग इंक्रीजेज इनसाइड वाटर बॉडीज। ये देखिए, नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा वाटर बॉडीज में बढ़ती चली जा रही है। वी यूज सोप एंड डिटर्जेंट इन अवर डोमेस्टिक यूज एंड थ्रू ड्रेनेज सिस्टम, या सीइंग हियर थ्रू ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज के माध्यम से, ये ड्रेनेज के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं आप, नाइट्रेट और फास्फेट जो है हमारे वाटर बॉडीज में इसका जो कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। एंड
द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट इज वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी। नाइट्रेट और फास्फेट की उपलब्धता एल्गी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल माना जाता है बच्चों। इसीलिए जब ये एल्गी के लिए फूड मटेरियल का काम करता है, इसलिए जो है इस प्रोसेस का नाम रखा गया यूट्रॉफिकेशन। एंड कंटिन्यूअसली we are using soap and detergent in our domestic purposes which add continuously the nitrate and phosphate inside the water bodies of stagnant water. And what will happen? Consequently the dissolved oxygen will be decreased। ये देखिए यहाँ पर जब मैंने बताया आपको कि द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट इज वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी, तो एल्गी का एक लेयर बन जाएगा। ये देखिए एल्गी का एक लेयर बन जाएगा स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट व्हिच इज वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी। A layer of algal colony is formed over the surface of stagnant water। स्टेगनेंट वाटर के सरफेस के ऊपर एक एल्गल कॉलोनी का लेयर बन जाएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको एक एल्गल कॉलोनी का लेयर, जिसको कॉमनली हम लोग काई भी बोलते हैं। बच्चों कभी भी काई आपने नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर बहते हुए पानी में नहीं देखा होगा। हमेशा आप काई रुके हुए जल पे, यहाँ तक कि दीवारों पर और सीढ़ियों पर भी रुके हुए अगर स्टेगनेंट वाटर है या पानी लगा हुआ है तो जरूर देखा होगा, लेकिन कभी भी यह रनिंग वाटर पे नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेगनेंट वाटर है एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट इज वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू व्हिच अ लेयर ऑफ एल्गल कॉलोनी इज फॉर्म्ड ओवर द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर एक एल्गल कॉलोनी का लेयर बन चुका है। कंसीक्वेंटली डिजॉल्व ऑक्सीजन विल बी डिक्रीज। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है बच्चों वह क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, इस तालाब के अंदर जो फिश है, जो फ्रॉग है, जो इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है अंदर, इस वाटर के अंदर ये एक्वेटिक लाइफ्स हैं, ये कुछ फिशेस हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी होंगे बच्चों। एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रिला, इकार्निया, जलकुंभी, निलंबियम, लोटस, here you are seeing some plants, some microbes, here bacteria and fungi, bacteria and fungi. You know very well that bacteria and fungi are the natural decomposer. They decompose the dead complex and organic material into inorganic material by the process of decomposition. So bacteria and fungi found everywhere, and here the layer of algal colony is formed due to the availability of nitrate and phosphate, which is very favorable condition for the growth of algae, and consequently a layer of algal colony is formed over the surface of water. And finally dissolved oxygen is being decreased, whereas biological oxygen demand will be increased and chemical oxygen demand also will be increased. The demand of oxygen for the degradation of chemicals and the demand of oxygen for the biological organism for the purpose of respiration, both will be increased, whereas the dissolved oxygen will be decreased because a layer of algal colony is formed over the surface of water, and after some time aquatic life begin to die। कुछ समय के बाद एक्वेटिक लाइफ मरना शुरू हो जाएगी और फाउल स्मेल कम्स फ्रॉम द पॉन्ड। पॉन्ड से फाउल स्मेल, बदबू आने लगेगा पॉन्ड से, और एल्गल ब्लूम्स आर अपीयर। आपने देखा भी होगा यहाँ एल्गल ब्लूम्स अपीयर होने लगेगी। बहुत ज्यादा एल्गी हो जाने की वजह से एल्गी का ब्लूम अपीयर होने लगेगा, एंड सच कंडीशन इज वेल नोन एज यूट्रॉफिकेशन। और इस कंडीशन को जब तालाब बजाने लगता है उस कंडीशन को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। जब एक्वेटिक लाइफ मरने लगता है, आपने कई बार देखा होगा वाराणसी में पिशाच मोचन पोखरे पर, शंकुधारा पोखरे पर और दुर्गा कुंड पोखरे पर, दुर्गा कुंड के तालाब पर कई बार आप देखते हैं निकलता है अखबारों में 7 कुंटल मछलियां मरी, 5 कुंटल मछलियां मरी।
तो मछलियां या जो एक्वेटिक लाइफ मरती हैं वह उनके मरने का क्या कारण होता है बच्चों? यूट्रॉफिकेशन। क्योंकि इंडस्ट्रीज से और होम रिलीज से, होम डिस्चार्जेस से निकलने वाले नाइट्रेट और फास्फेट जब स्टेगनेंट वाटर वाले वाटर बॉडीज में ये रुकना शुरू होते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, तो एल्गी के ग्रोथ को वह प्रमोट करते हैं। एल्गी के ग्रोथ को जैसे जैसे वो प्रमोट करते चले जाते हैं एल्गी की ग्रोथ को, वैसे वैसे एल्गी की एक लेयर कॉलोनी की बनने लगती है। और जब एक लेयर एल्गी की कॉलोनी की बनने लगेगी बच्चों, तब जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन घटने लगेगा और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगेगा, और उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे यूट्रॉफिकेशन। ओके, तो दिस वन इज द फर्स्ट हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ एल्गी। The second harmful aspects is related to chlorella. क्लोरेला, आपने क्लोरेला के बारे में पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है जिससे डाबर कंपनी ने क्लोरेलिन बनाया था, और क्लोरेला को स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं फूड मटेरियल के रूप में। तो ये तो क्लोरेला का बेनिफिशियल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन हार्मफुल एस्पेक्ट में भी क्लोरेला का नाम आ रहा है बच्चों। इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लोरेला सीक्रेट सम टॉक्सिन्स, some toxic chemicals. Okay, some toxins or some toxic chemicals secreted by chlorella, which kills the surrounding of other algal, the colony of other surrounding algae as well as the surrounding aquatic life. जब क्लोरेला के थ्रू केमिकल, टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट हो रहा है, तो जिसकी वजह से अगल बगल की जो और दूसरे एल्गी की कॉलोनी है और डाई कर जाएगी, और साथ ही साथ ये इफेक्ट करेगा अदर सराउंडिंग एक्वेटिक लाइफ को। एक्वेटिक लाइफ जो भी है तो सभी एक्वेटिक लाइफ को यह इफेक्ट करेगा, बिकॉज द केमिकल इज टॉक्सिक इन नेचर। केमिकल दैट इज सीक्रेटेड बाय क्लोरेला इज टॉक्सिक इन नेचर। So these are the two harmful aspects related to algae, children. One is eutrophication and another is related to chlorella. Otherwise, algae are so many beneficial for today and for future also. Okay. Now, students, as we have discussed that the habitat of algae is nearly common. That is aquatic or damp soil, moist soil, tree logs, tree stumps, moist floor, moist soil, and moist staircases. Okay, algae prepare their own food material because they have chlorophyll. So, on the basis of reserve food material, ध्यान दीजिएगा बच्चों, on the basis of reserve food material, color pigment, on the basis of reserve food material, color pigment, and mode of reproduction. Okay, on the basis of रिजर्व फूड मटेरियल, कि फूड मटेरियल को किस फॉर्म में एल्गी ने रिजर्व रखा हुआ है। इसके अलावा कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल का कौन सा प्रकार है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, टेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, या कोई अलग से कलर पिगमेंट है जो डिफरेंट काइंड के कलर इंपार्ट कर रहा है, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव किस तरीके का है, एसेक्सुअल किस तरीके का है, और सेक्सुअल किस तरीके का है। दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द division of algae, for the classification of algae. Okay, children. So, on the basis of reserve food material, color pigments they have, and mode of reproduction, division algae has been divided into 3 classes. ध्यान से सुनिएगा, रिजर्व फूड मटेरियल के आधार पे, कलर पिगमेंट के आधार पे, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पे डिवीजन एल्गी को 3 क्लासेस में बांटा जाता है बच्चों, which are number 1 is chlorophyceae. Number 1 is chlorophyceae. Number 2 is Phaeophyceae, and number 3 is Rhodophyceae. Okay, children. On the basis of reserve food material,
color pigment and mode of reproduction, division algae has been divided into three classes, which are chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae. Chlorophyceae representing green algae. This class belongs to the green algae. The members of Phaeophyceae are brown algae and members of Rhodophyceae are red algae. So remember this thing that Chlorophyceae means green algae, class of green algae, Phaeophyceae means class of brown algae, and Rhodophyceae means class of red algae. So first of all, we are going to start Chlorophyceae. First class is Chlorophyceae. Students, here the criteria are also written that reserve food material, color pigment and mode of reproduction. But first of all, we should know that Chlorophyceae are commonly known as green alga. Commonly known as green alga. इस क्लास के मेंबर्स ग्रीन एल्गी कहलाते हैं. ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कलर पिगमेंट की बात की जाती है. कलर पिगमेंट्स आर chlorophyll A and chlorophyll B. Color pigments are chlorophyll A and chlorophyll B. Reserve food material is pyrenoid starch. ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्लोरोफाइसी के मेंबर में जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा? पायरिनोइड स्टार्च. स्टार्च का एक प्रकार है. स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिसमें हजारों शुगर आपस में जुड़े हुए हैं और नंबर ऑफ शुगर और उनके बीच के बॉन्ड के हिसाब से पॉलीसेकेराइड्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन. और स्टार्च भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट विल बी सेड टू बी एज पायरिनोइड स्टार्च. ध्यान दीजिएगा, कलर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी. रिजर्व फूड मटेरियल पायरिनोइड स्टार्च. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. आप अच्छी तरह जानते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा के केसेस में आप फ्रेगमेंटेशन पढ़े भी हुए हैं. यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा आर द filamentous green algae which are filamentous in nature, in body structure, and some fragments are detached from the parent body, remain dormant in unfavorable condition, and when favorable condition comes then the fragment develops into new offsprings. That's why such kind of vegetative reproduction is well known as fragmentation. Okay, so vegetative reproduction takes place by means of fragmentation. Asexual spores. Okay, asexual spores क्लोरोफाइसी के बच्चों जो asexual spores होंगे, asexual spores are may be motile. asexual spores मोटाइल होंगे, मोटाइल चलने वाले होंगे. दैट इज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स. बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स. जूस्पोर्स. और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होता है. इट विल बी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस or oogamous type. Oogamous type. I am explaining these points again. First of all, class Chlorophyceae. See the color pigment here. See here, children. Color pigments are chlorophyll A and chlorophyll B. Reserve food material is pyrenoid starch. Vegetative reproduction by means of fragmentation. Asexual spores are motile, that is biflagellated zoospores. And sexual reproduction is fusion of gametes. Basically sexual reproduction takes place by means of fusion of gametes. It may be isogamous, anisogamous or oogamous. तीनों तरीके का हो सकता है. isogamous, anisogamous or oogamous. Isogamous means gametes are of same size. Anisogamous means gametes are of different size. And oogamous means male gamete is small and motile, and female gamete is large and sessile, and male gamete is fused within the female gamete. Such kind of
fusion is said to be as oogamous. So here you are seeing that sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous type. So all the criteria you are seeing children here, that the color pigments are chlorophyll A, chlorophyll B, reserve food material are pyrin white starch, vegetative reproduction takes place through fragmentation, asexual spores are motile, that is biflagellated zoospores, and sexual reproduction takes place by means of fusion of gametes. It may be isogamous, anisogamous or oogamous type. So this one is all about chlorophyceae, and if we shall discuss about the examples of chlorophyceae, then it may be unicellular, example Chlamydomonas, or may be multicellular, example Chara. Okay, unicellular example Chlamydomonas, and multicellular example Chara. Green algae or maybe colonial example Volvox. Okay, filamentous example Eulothrix and Spirogyra. Best example Eulothrix. So children, in many habits, you are seeing here the examples of green algae: unicellular Chlamydomonas, multicellular Chara, colonial Volvox, filamentous, यूलोथ्रिक्स, अलग अलग तरीके के ग्रीन एल्गी आप देख रहे हैं. ओके, सो ग्रीन एल्गी, that is the chlorophyceae, reserve food material is pyrin white starch, color pigment is chlorophyll A, chlorophyll B, vegetative reproduction takes place by means of fragmentation in filamentous algae, in Eulothrix and in Spirogyra. Asexual reproduction takes place through asexual spores which are biflagellated zoospores, motile in nature. Sexual reproduction takes place through fusion of gametes of opposite strain. क्योंकि मेल और फीमेल वाली बात तो हो नहीं सकती अभी, तो यहाँ पर बोलेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेन के गैमेट्स में फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल के, जो तो ये हो गया आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेन. और उसमें भी मैंने बताया आपको कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, आइसो, एनाइसो और oogamous तीनों तरीके से हो सकता है. आइसोगैमस मींस फ्यूजन ऑफ सेम साइज्ड गैमेट्स, एनाइसोगैमस मींस फ्यूजन ऑफ डिफरेंट साइज्ड गैमेट्स, and oogamous means fusion of male gametes within female gamete. Male gamete is smaller and motile in nature, whereas female gamete is larger and stationary, that is oogamous type. And examples we are seeing that green algae are maybe unicellular Chlamydomonas, multicellular Chara, colonial Volvox, or filamentous in nature, that is Eulothrix. So students, in today's class we have discussed about the ray diagram of kingdom Plantae and started division algae, and discussed about the economic importance of algae, the beneficial and harmful aspects, and finally started the classification of division algae. We have seen that on the basis of reserve food material and color pigments and mode of reproduction, division algae has been divided into three classes, which are chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, green algae, brown algae and red algae. And then we have discussed all the criteria, all the characters of chlorophyceae, members of this class green algae, and we have discussed all the characteristic features of green algae. Okay students, in the next class we shall start class phaeophyceae and rhodophyceae means brown algae, and we shall discuss about brown algae and red algae. Okay, till then you have to just prepare notes related to economic importance of algae and learn the ray diagram, prepare the ray diagram of kingdom Plantae. Thank you very much.